Revision 12 nature. In the last class, we saw that if light of suitable frequency is incident on a metal surface, photoelectric effect takes place. This is micrometer which will show deflection. यहाँ से light incident होगी of frequency nu. Electrons will be moving with kinetic energy and reach to the anode, and circuit will be completed, right? Now, photoelectric effect will take place only and only if frequency of incident light is more than threshold frequency. ठीक है? This is threshold frequency. Frequency of incident light has to be more than threshold frequency. Then only photoelectric effect will take place. अगर ऐसा होता है, if I multiply both the side by h, then this would be the left side E would be the energy of incident photon. जो light incident है उसकी energy है, and this is work function. कहने का मतलब one photon is quanta of light, packet of light. One photon would interact only with one electron. तो उस photon की energy has to be greater than the work function. Work function का मतलब है minimum energy required to knock off an electron. And in context with regard to particle nature of light, intensity of light क्या होती है? Intensity of light का मतलब है number of photons falling per unit area per unit time. Number of photons incident. अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इट्स बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम भी इंक्रीज होते हैं. So when we increase intensity of light, number of photons incident per unit area per unit time will increase. वैसे intensity would be n. N is number of photons. H nu is energy of one photon divide by T. तो number of photons per unit time हो गया into the area. This is the formula for intensity. A is area, T is time. तो जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट बढ़ जाएंगे. एंड इफ दिस कंडीशन इज देयर सेटिस्फाइड की मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ज़्यादा है तो फिर क्या होगा? दिस इज अ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी of light, incident light, and this is photoelectric current. Horizontal I, and this is I also photocurrent. हाँ, इसे मैंने लिख दिया है.
I is electric current on the y-axis, photocurrent, and intensity of light is this. So this is basically a straight line. लेकिन ये तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट. जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब photoelectric current is directly proportional to the intensity of light. Okay? And what is threshold frequency? Threshold frequency is minimum frequency of incident light below which photoelectric effect will not take place. अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. सो न्यू नॉट is threshold frequency, minimum frequency of incident light below which photoelectric effect will not take place. As far as in terms of lambda is concerned, lambda में result उल्टा हो जाएगा. Nu is more than nu naught. In terms of lambda, lambda would be less than lambda naught. Lambda naught is threshold wavelength. Lambda naught is threshold wavelength. It is the maximum wavelength of incident light above which photoelectric effect will not take place. इंसिडेंट लाइट की अगर वेवलेंथ लैम्डा नॉट से ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. जस्ट रिवर्स रिलेशन. लिख लिया घर में. तो अब क्या होता है जब लाइट फोटोन इज इंसिडेंट विद एनर्जी एच न्यू, सम ऑफ इट्स एनर्जी यूज्ड इन इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन, जो रिमेनिंग एनर्जी होगी एच न्यू इज द टोटल एनर्जी अवेलेबल, उसमें से हम क्या करेंगे, वर्क फंक्शन माइनस कर देंगे, एंड द रिमेनिंग वुड बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. उस काइनेटिक एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा. और एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इस फॉर्मूले में तुम जरा देखो, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ये पार्टिकल नहीं है, ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये पार्टिकल है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो दिस इज एच न्यू इज इक्वल टू फाइ नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v is speed of electron. And numericals में we'll be using these units. Electron volt, 1 electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. 1 electron volt is 1.6 10 to the power minus 19 joule. इसको तुम इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. और न्यू की जगह वेवलेंथ भी यूज कर सकते हो, एच सी लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. कई वेज में इस इक्वेशन को यूज किया जा सकता है. So depending upon the quantities given to you, you can use the formula. और शनाया तैयारी हो गई प्री बोर्ड की? पहला तो मैथ्स का है. हैं? पहला मैथ्स का है. कब है मैथ्स? मंडे. अच्छा, फिर ये कब है? फिजिक्स कब है? फिजिक्स 19th को. अच्छा अच्छा. तो इफ यू प्लॉट ए ग्राफ, ग्राफ आएगा अक्सर. इससे ग्राफ से पहले एक और चीज कर लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल.
तो तुम्हारा यूसीड भी तो है अभी, 18 को तो यूसीड है। हाँ। यूसीड दे रही हो तुम? हाँ। अच्छा, फिजिक्स तो बैक सीट ले लेगा फिर, है। अब देखो यहाँ पे, अगर हम पोलैरिटी चेंज कर दें बैटरी की, इसको, ये अभी इनफैक्ट उल्टा भी बनाया था मैंने, ये पॉजिटिव होना चाहिए था, ये नेगेटिव होना चाहिए था। तो अभी तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, एनोड की तरफ। इफ आई चेंज द पोलैरिटी, इफ आई मेक इट नेगेटिव पोटेंशियल एंड दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल, वी रिवर्स द पोटेंशियल। तो अगर डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड, देखो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गया। अब ग्रेजुअली इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड बाय दिस नेगेटिव पोटेंशियल। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? Electron will not be able to reach at a particular value. तो at particular negative potential at this electrode, no electron will be able to reach the anode, और फिर photo current zero हो जाएगा. So that potential is called stopping potential. So what is stopping potential? Minimum negative potential, so that no electron, no photoelectron, or you can say photoelectric current becomes zero. Minimum negative potential such that photoelectric current becomes zero. तो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी इनटू इज इक्वल टू ई वी स्टॉपिंग. ऑलवेज इक्वल टू ई इंटू वी स्टॉपिंग. अब इसका मतलब समझो, सपोज किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है 12 वोल्ट. इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और उसका रिवर्स भी हो जाएगा. अगर सपोज किसी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट वुड इम्प्लाई दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा उसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड बी 5 वोल्ट. इट्स लाइक दैट. तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 12 वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई. अगर काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वी स्टॉपिंग 5 वोल्ट हो जाएगा. अब क्वेश्चन आता है, तो मतलब यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम काइनेटिक एनर्जी को वी स्टॉपिंग से भी रिप्लेस कर सकते हैं. दैट मीन्स एच न्यू इज इक्वल टू फाइ नॉट प्लस वी स्टॉपिंग इंटू ये हो गया, या एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस वी स्टॉपिंग इंटू ये हो जाएगा, या फिर एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस वी स्टॉपिंग इंटू ये हो जाएगा. सो यू कैन रिप्लेस kinetic energy with V stopping into E. Then the graph.
एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पहला ग्राफ आएगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, वो देखो। तो we'll take kinetic energy as y-axis. So kinetic energy on the y-axis equal to h nu माइनस फाई नॉट, ठीक है। इसको जरा इससे कंपेयर करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose slope is m। तो स्लोप की जगह h आ गया और y इंटरसेप्ट की जगह माइनस फाई नॉट आ गया। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? The graph would be like this. On the y-axis, we have kinetic energy. This is the frequency, and this is nu नॉट। और अगर इसको तुम बैकवर्ड मूव करोगे तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा वो फाई नॉट के इक्वल होगा, वाई इंटरसेप्ट। और इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू एच। लिख लो ये। सो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ में स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव यू, slope of the graph gives you Planck's constant. So in the graph of kinetic energy versus frequency, slope of the graph gives us Planck's constant. और थ्रेशोल्ड कैसे निकालोगे? जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे? ओरिजिन से लेके जहां पे ये प्रोड्यूस करके इंटरसेक्ट कर रहा है वो बन जाएगा वर्क फंक्शन, ये वाला। अगर सपोज दो तीन मेटल्स के हमें ग्राफ बनाने हैं तो क्या होंगे? वो सारे पैरेलल होंगे इसके। इफ यू हैव थ्री मेटल्स, सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, सबके ग्राफ पैरेलल होंगे बिकॉज प्लैंक्स कांस्टेंट सबके लिए सेम है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इनमें से, तो और दिस इज सी, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ है, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। तो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा? वर्क फंक्शन ऑफ सी इज मोर देन that of B is more than that of A। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी C का ज्यादा होगा B से और A से। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में उल्टा हो जाएगा, लैम्डा C would be least, लैम्डा B and then लैम्डा A। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जस्ट टू कंफ्यूज यू माइट गिव यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जगह थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑल्सो। नेक्स्ट ग्राफ होगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या इक्वेशन है? E इंटू वी स्टॉपिंग इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ठीक है। तो वी स्टॉपिंग कितना आ जाएगा? एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई। देख लो एक बार। इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लीज से कंपेयर करो। तो देखो क्या ग्राफ आएगा इस बार। दिस इज वी स्टॉपिंग ऑन द y एक्सिस, frequency on x axis,
दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस बार tan थीटा कितना होगा, स्लोप ऑफ वी स्टॉपिंग वर्सेस फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, h/e। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वही होगी जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर तीन डिफरेंट मेटल्स हैं ए बी सी, तो सभी का स्लोप इक्वल आएगा, दे विल बी पैरेलल लाइंस लाइक दिस। ठीक है। देन देर बी मोर ग्राफ्स लाइक ये आता है अक्सर। दिस इज ऑन एक्स एक्सिस वी है पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है, एंड दिस इज फोटो करंट on the y-axis. So first situation we have three different lights, three different light waves having the same intensity but different frequencies। लिख लो ये पहले, तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट है बट उनकी तीनों की इंटेंसिटी सेम है। तो सेम इंटेंसिटी है तो मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम सेम आ रहे हैं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सेम है। फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, तो अगर फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं तो विल फाइंड दैट कि उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट आ रहा है बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज न्यू 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 3 है। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V1, इसका V2, इसका V3। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की। तो उसको रोकने के लिए तुम्हें ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल। लेकिन एंड में जाके इंटेंसिटी सेम है तो फोटो करंट सेम हो जाता है, बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड पर यूनिट टाइम, उस पर डिपेंड करता है। हम्म। फोटो, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक तो ये ग्राफ आ सकता है, दूसरा एक और ग्राफ है जिसमें हम क्या करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी बट थ्री डिफरेंट इंटेंसिटीज, सेम फ्रीक्वेंसी लाइट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट है बट उनकी इंटेंसिटी अलग अलग है। तो अगर इंटेंसिटी अलग अलग है, ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव आ गया।
तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो उन सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग होने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट सबकी अलग अलग हो जाएगी। I1, I2, I3। अब देखो, I1 जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है I2 से, I2 I3 से ज्यादा है, तो जो फोटो करंट है वो भी I1 में ज्यादा है। तो corresponding to higher intensity photoelectric current will be more, stopping potential सेम आएगा। अब इससे तुम क्या इंटरप्रेट कर रहे हो? इस ग्राफ, दोनों ग्राफ से क्या पता लग रहा है? इन दोनों ग्राफ से एक सबसे पहली बात तो ये पता लग रही है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है ना? अलग फ्रीक्वेंसी अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सेम फ्रीक्वेंसी के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। लिख लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, नहीं नहीं, हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन frequency of incident light। but हाँ, but it does not depend upon, but it does not depend upon intensity of incident light। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्राफ प्लॉट करना भी आ सकता है, आया हुआ है लास्ट ईयर। अब देन ये आ सकता है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? लिख लो, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 3 मार्क का आ सकता है। फर्स्ट, फॉर एवरी मेटल, फॉर एवरी मेटल देयर एग्जिस्ट, फॉर एवरी मेटल देयर एग्जिस्ट a minimum threshold frequency, a minimum threshold frequency below which, below which photoelectric effect will not take place। Second, if frequency of incident light, if frequency of incident light is more than, if frequency of incident light is more than threshold frequency, photoelectric current, photoelectric current is directly proportional to, is directly proportional to intensity of light। नेक्स्ट लिखो, stopping potential, stopping potential does not depend upon intensity of light, does not depend upon intensity of light, but
depends upon but depends upon frequency of incident light. And the last part, photoelectric effect. Photoelectric effect is a spontaneous process. Photoelectric effect is a spontaneous process in which time lag is extremely small. कहने का मतलब जब फोटो लाइट इंसिडेंट हुई and immediately electron would be emitted. There is no time lag. Almost 1 microsecond, 1 nanosecond होता है. Then जिस तरह से light is behaving, as a particle, then de Broglie proposed that if light can behave in a dual manner, a particle can also be associated with a wave. A wave can be associated with a moving particle. A wave, पोस्टुलेट आ सकता है 1 मार्क का. A wave, जैसे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, तो डी ब्रोगली. A wave like characteristics, a wave like characteristics can be associated with a moving particle, or a moving particle can behave as a wave. कुछ भी लिख सकते हो अपने वर्ड्स में. तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है. E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. एक सी कट जाएगा, तो h by mc is equal to lambda. mc is the momentum, so this is de Broglie wavelength. Lambda is de Broglie wavelength, p is momentum. तो अब momentum as you know is m into v भी होता है, तो lambda can be h by mv also. V is the velocity of the particle, m is the mass of particle, v is speed of particle. अगर चार्ज पार्टिकल है, उसको मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है मान लो, तो उस केस में हम एम वी, स्पीड ऑफ पार्टिकल, एम इज मास ऑफ पार्टिकल, तो हम एम वी की जगह, बिकॉज हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, तो हम दोनों साइड को एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 2 km. तो मोमेंटम निकल आता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला, एच डिवाइड बाय अंडर रूट 2 km. ये एक और फॉर्मूला है, वेयर के इज काइनेटिक एनर्जी. सपोज किसी पार्टिकल के तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है डायरेक्टली, तो उसको तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो जूल में कन्वर्ट करके. समटाइम्स पोटेंशियल दिया होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को टू पोटेंशियल इनटू द चार्ज, तो वी कैन आल्सो यूज दिस फॉर्मूला, एच डिवाइड बाय अंडर रूट 2 v/q/m. ये भी यूज कर सकते हैं. हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला भी किया था, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होगा, याद है किसी को? फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, लैम्डा का वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ 12. 4 2.29 था, मैं 12.3 था शायद. 12.3 डिवाइड बाय रूट वी. एंगस्ट्रॉम है ना. 12.3 एंगस्ट्रॉम बाय अंडर रूट वी. अगर किसी इलेक्ट्रॉन को सपोज तुमने 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, तो उसकी वेवलेंथ आएगी 1.23 एंगस्ट्रॉम. डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन
ये आ सकता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन व्हाई wave nature of light fails to explain photoelectric effect. वेव नेचर लाइट में क्या होता है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम भी अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, तो बाय सिंपली इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल कर सकते थे, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इन वेव नेचर वी अज्यूम दैट लाइट इज कंटिन्यूअस एनर्जी, कंटिन्यूअस फॉर्म, whereas in particle nature we assume that light is packets of energy. एक इलेक्ट्रॉन एक पैकेट ऑफ फोटोन से ही इंटरेक्ट करेगा. सो मान लो इफ दे आर टू, suppose energy of one photon is say 2 electron volt h nu, वर्क फंक्शन है सपोज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो तुम कितनी भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दो, फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी. एंड एज one photon is interactive in one electron, photoelectric effect will not take place. मतलब ये नहीं कि दो फोटोन आपस में मिलके उनकी एनर्जी बन जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन को वो निकाल देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. इट इज 1 to 1. अब इसके देखो असाइनमेंट देखो, इसमें क्वेश्चंस होंगे. ऑनलाइन दिया था, भेजा था मैंने, है? दोबारा रिसेंड कर सकती हो, ग्रुप में रिसेंड करना एक बार. हाँ 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 हाँ. हम्म. श्योर. ठीक है, कर लो क्वेश्चंस. ISC 2025 का क्वेश्चन है ये. If kinetic energy of moving electron is made 4 times, then the de Broglie wavelength को क्या होगा? तो you have this formula, h divided by under root 2km. तो अगर k 4 टाइम हो जाएगा तो लैम्डा हाफ हो जाएगा, बिकॉज अंडर रूट के अंदर है. शनाया समझ में आ गया? Yes, sir. So if the kinetic energy becomes 4 times, lambda will become half. Next question, the name any one phenomena where moving particle behave like waves. अभी किया था, कौन सा था गरिमा?
नेम एनी वन फिनोमेना वेयर मूविंग पार्टिकल बिहेव लाइक ए वेव। डी ब्रोगली वेवलेंथ जिसमें हो रहा हो। दो है ना, रिफ्लेक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक। नहीं, मूविंग पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए वेव, मूविंग पार्टिकल होना चाहिए, वेव में तो वेव है ही सही, वो नहीं थोड़ी कर सकते हो। एनी वन फिनोमिना वेयर मूविंग पार्टिकल बिहेव लाइक ए वेव, कौन सा फिनोमिना ऐसा है? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे बिहेव लाइक ए वेव। एक होता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो उल्टा हो रहा था, वेव वाज बिहेविंग लाइक ए पार्टिकल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव वाज बिहेविंग लाइक ए पार्टिकल। अगर ये पूछा होता नेम फिनोमेना इन विच वेव इज बिहेविंग लाइक ए पार्टिकल, तो वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यह एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट। नहीं, दोनों अलग हैं। वेव बिहेविंग लाइक ए पार्टिकल में दिए हैं, पार्टिकल में डिफ्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा होता है। कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट का, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी a gamma ray photon should possess to produce an electron positron pair? ये तो लर्निंग वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी अ गामा रे, आई थिंक ये सिर्फ आईएससी में आता है। तुम्हें याद है शनाया? ये उसका पार्ट है न्यूक्लियर का। चलो कर लेंगे इसको भी, नेक्स्ट आगे बढ़ो। इसमें मिक्स क्वेश्चन है शायद, है ना? इस असाइन इसमें ना दोनों के मिक्स क्वेश्चन है, डुअल नेचर एंड उसके ना एटम न्यूक्लियर के। हाँ, ये थर्ड वाला न्यूक्लियर का क्वेश्चन है, छोड़ो उसको भी, न्यूक्लियर के बाद में करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। पता है ना दोनों? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट, राइट, ठीक है। एंड वर्क फंक्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, दैट्स वर्क फंक्शन। अब देखो ये आ गया 3 मार्क का क्वेश्चन है आईएससी 2025 का। प्लॉट a labeled graph of stopping potential versus frequency of incident UV radiation। तो देखो जरा कौन सा वाला ग्राफ बनेगा इसमें। कौन सा होना चाहिए बताओ? लेवल ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये वाला। दिस इज आंसर, आईएससी 2025। लेबलिंग का मतलब क्या करोगे, यहाँ लिखोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी tan थीटा इक्वल एच बाई ई लिख दोगे। यहाँ पे दिस विल बी माइनस फाइव नॉट बाई ई। हाँ, so that is, चाहो तो एक ही लाइन बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ 2 3 लाइंस ऑल्सो। और इसमें क्या पूछा था, स्टेट हाउ द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम दिस ग्राफ। स्लोप निकाल लो और स्लोप को फिर ई से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? फाइंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एंड मल्टीप्लाई दैट बाय ई विल गिव यू द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या था? हाँ, इसको छोड़ दो अभी, नेक्स्ट भी छोड़ दो। अब आ जाओ इस पे, सीबीएसई 2025 पे आ जाओ।
The work function of materials 2.21 electron, which of the following cannot produce photoelectrons from it. हाँ, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क फंक्शन को यूज करके निकालो, वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालो। करो जल्दी से, फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तुम्हें दे रखा है वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन दे रखी है, तो उसको कन्वर्ट करो जूल में, कितना हो जाएगा, 2.21 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल। उसके बाद एच सी बाय लैम्डा से लैम्डा नॉट निकालो। एच कितना होता है याद है ना, 6.62 10⁻34। निकालो लैम्डा नॉट, और फिर लैम्डा नॉट से तुम्हें आइडिया लगेगा कौन से कलर की लाइट पॉसिबल है। क्या आ गया? क्या आ रहा है? शनाया लैम्डा नॉट कितना आ गया? कर लो। किया किसी ने? 5610 एम्स्ट्रॉम। कितना? 5610 एम्स्ट्रॉम। ये आ रहा है? अब ये कौन सा वेवलेंथ हुआ, मैंने बताया ना, विजिबल लाइट का क्या होता है, विजिबल लाइट का होता है 4000 से 8000 तक होता है। ये रेड होता है, ये वॉयलेट होता है, तो 5000 वॉयलेट से थोड़ा आगे हो गया। तो
ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये तुम्हारी, तो वेवलेंथ इससे कम होनी चाहिए। द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट हैज टू बी लेस देन दिस। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट हैज टू बी लेस देन दिस, है ना। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट हैज टू बी लेस देन, कौन किस लाइट की वेवलेंथ इससे कम होगी? ऑब्वियसली बात है, वॉलेट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में उल्टा होता है। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटी होनी चाहिए, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिल गई हमें 5610। तो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ इससे कम होनी चाहिए, शुड बी वॉयलेट कलर। ये इसका आंसर है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग एंट्रेंस आई है ना बीच में, तो अब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। 29 को क्या वर्ड है, डे? थर्सडे। हाँ, 29 30 से स्टार्ट कर लेंगे क्लासेस ना वापस से। फिर तुम्हारा बोर्ड का फिजिक्स का बोर्ड 22 में, क्या 21 फेब तो है, क्या टाइम बचा है? 1 घंटा है ना। ठीक है, एंडिंग द क्लास। शनाया तुम कोई टेस्ट वेस्ट नहीं दे रही है अभी? फिजिक्स का तो जे के बाद ही। जेई के बाद दोगे, ठीक है। तो अब आई रिज्यूम क्लासेस फ्रॉम 30th। ठीक है, फिजिक्स क्लास। 1 2 वीक अब क्लास नहीं लेंगे हम फिजिक्स की, कोई आ भी नहीं रहा है। और अगर इन बिटवीन अगर तुम कोई टेस्ट देती हो, फुल टेस्ट फिजिक्स वगैरह, तो मेरे को भेज देना, ठीक है। दोगे कोई फुल टेस्ट? अभी तो क्या दोगी मुझे मालूम है, ठीक है। ओके, एंडिंग द क्लास।